Good morning class. Now let's start new topic, that is algebraic expression. Now before starting the chapter, first let's understand what this basically means. Algebraic, this word is made from the word algebra. Now what is algebra? It is a branch of mathematics. It is simply a branch of mathematics which deals with symbols, coefficient, rules to represent quantities without fixed values known as variables. Now, when such algebraic terms are written together with variable, constant, coefficient, together they make up an algebraic expression or say algebraic equations. Let's see the definition. An algebraic expression is made of variables, constant, and mathematical operators. Mathematical operators mean प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक्सेट्रा, मतलब जो भी मैथमेटिकल मतलब ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, किसके साथ? वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ, ये सब के सब मिलके क्या बनाते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इक्वेशन देखें 8x + 48y - 22, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी. क्यों? सी 8x, 8 एक नंबर है, x एक वेरिएबल है, 22 एक अकेला नंबर है जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, 8 जो है वो x का कोफिशिएंट है. तो हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें क्या क्या दिख रहा है? एक कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है. ये सब मिला के क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन. दैट मीन्स expression made of variables, constant and mathematical operator are known as algebraic expression or algebraic equations. So this was the introduction about algebraic expression. Now algebraic expression, इसमें या तो सीधे सीधे आपको कोई इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, we need to solve, और एक कोई रिटन स्टेटमेंट होगा जिससे हमको एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड देन हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली द क्वेश्चंस. लाइक आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 एप्पल इट वेज 75 grams and 1 orange it weighs 40 grams. Then what are the weight of x apple and y oranges? Now see in the question हमको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि हमको एप्पल जो है उसको x क्वांटिटी लेके चलना है और जो ऑरेंज है हमको उसे y क्वांटिटी लेके चलना है और हमको इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो क्वेश्चन क्या है? इसमें सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी है. 1 एप्पल वेज 75 grams and 1 orange weighs 40 grams. Weight of x apple and y orange is. So we can write according to question, apple is equal to x and orange equal to y. Therefore, since one apple weighs 75 grams and we have assumed apple is x, so we can write here 75x, and one orange weighs 40 grams. That means 40y. Why? Because orange को हमने y suppose किया है. Now question is saying कि weight of x apple and y oranges is, मतलब इन दोनों का वेट हमें कैसे पता चलेगा? हमको साथ में ये पूछ रहे कि इन दोनों का वेट कितना होगा. तो अगर हम दोनों के वेट को ऐड कर देंगे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगी. सो दिस विल बी आवर आंसर. हमें यहाँ पे सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. ओके हमको यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन बनानी थी. फर्दर दिस कैन नॉट बी सॉल्व क्योंकि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है. कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, दिस वी विल रीड इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग नंबर्स, literals and basic operations. Now see here is a word written literals. Understand what is the meaning of literals. Literals are simply those representatives which are used to represent or replace the numbers. Like as we can see in the figure, for representing the perimeter of a square, literal numbers can be used. In place of sides, we are using s. This is only what? Literal. Now,
Let's see what the question was saying. Now the question is saying that we need to form the algebraic expression for each of the following statements. There are 4 statements written. Now as per the statement we need to we need to form the algebraic expression. Like the very first one is the sum of x and y, the sum of x and 5 is added to y. So what will be the expression? Now since it is saying sum of x and 5, so we can write x plus 5 added to y. So what will be the expression? X plus 5 plus y. सिंपल, ये एक्सप्रेशन हमें बनाना था. अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? x लेस देन द सम ऑफ y एंड z. सीधे से हमको बस सबसे इजी स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. x लेस देन सम ऑफ y प्लस z. तो सबसे पहले सम ऑफ y प्लस z कैसे लिखेंगे? y प्लस z. और क्या लिखा है? x इज लेस देन सम ऑफ y एंड z. दैट मीन्स हो गया x y और z के सम से लेस है. ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. थर्ड देखते हैं. 4 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y. 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाइड. तो 4 टाइम्स सम ऑफ x प्लस y. ये हो गया इसका स्टेटमेंट. लास्ट, द क्वोशिएंट ऑफ x बाय y is added to the product of x and y. Now see, ये हल्का सा ट्रिकी है. क्या बोल रहे हैं? The quotient of x by y is added to the product of x and y. तो सबसे पहले लिखा है quotient of x by y मतलब सिंपल x अपॉन y. क्वेश्चन रिमाइंडर ये सब किस में आते हैं टर्म्स? डिवीजन में. तो x बाय y एंड प्रोडक्ट ऑफ x बाय x एंड y मतलब x इंटू y, या डायरेक्ट एक्स वाई लिख सकते हैं. तो क्वोशिएंट ऑफ x बाय y इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मतलब सिंपल ये कह रहे हैं कि क्वोशिएंट एडेड टू प्रोडक्ट. तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. x by y प्लस x इंटू वाई. डन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहन स्पेंड्स ₹x डेली एंड सेव्स y पर डे. व्हाट इज हिज इनकम आफ्टर 3 weeks? दैट मीन्स रोहन x कमाता है, रोहन x खर्च करता है और y को वो हर दिन बचाता है. तो 3 हफ्तों के बाद रोहन की इनकम कितनी होगी? तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि वो स्पेंड कितना कर रहा है और सेव कितना कर रहा है. मतलब पर डे की उसके पास क्या इनकम बचती है. पर डे वो इतना स्पेंड करता है, इतना सेव करता है, तो पर डे उसके पास आखिर कितना बचता है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पर डे इनकम इज इक्वल टू पर डे स्पेंडिंग प्लस पर डे सेविंग. भाई क्या मतलब है इसका? कि एक दिन में वो कितना खर्च करता है और कितना बचाता है. यही तो उसकी एक तरह से पर डे की इनकम बता देगी. क्योंकि जब हमको डेली वेजेस का पता चलेगा तभी तो हम 3 weeks का निकाल सकते हैं. ये सिंपल इस तरीके से है कि 10 पेन की कॉस्ट पूछ रहा है, एक की निकाल लो तो अपने आप 10 पेन की निकल जाएगी. तो पर डे स्पेंडिंग प्लस पर डे सेविंग. एक्स स्पेंड करता है, वाई सेव करता है. दैट मीन्स एक्स प्लस वाई रुपीज़. यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट लिखनी है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकम आफ्टर 3 weeks, 3 हफ्तों बाद ये इनकम कितनी होगी? तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन. तो 3 हफ्तों में कितने होंगे? 3 इंटू 7 इंटू उसकी पर डे इनकम. दैट मीन्स x प्लस वाई. तो ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा? 21x प्लस वाई रुपीज़. सिंपल. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन नंबर y
एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल है। कोई एक नंबर p है, वो कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। टाइम्स मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन, तो 8 टाइम्स अ नंबर p। सीधे सीधे बस स्टेटमेंट पढ़ते जाना और इसी के अकॉर्डिंग लिखते जाना है। तो 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन नंबर y। अब देखो ये ध्यान से पढ़ो, x लेस देन नंबर y मतलब y से कम है x, दैट मीन्स y माइनस एक्स। 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन नंबर y। सिंपल, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इफ़ यू आर थिंकिंग यहाँ के बीच में इक्वल टू क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन नंबर y, मतलब इसकी रिलेशन इससे है, दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वलाइज। दैट इज वाई 8p इक्वल टू y माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्चना स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM फॉर जयपुर। हर कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। If at 1 PM she observes that she is 20 km away from Jaipur, find the distance between Delhi and Jaipur। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्चना ने दिल्ली से सुबह 8 बजे जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से जाना था जयपुर तक, मतलब दिल्ली से जयपुर तक सुबह 8 बजे स्टार्ट की। उसकी कार कितनी स्पीड से चल रही थी? x किलोमीटर से। अगर 1 बजे अर्चना ये ऑब्जर्व करती है कि वो जयपुर पहुंचने से 20 किलोमीटर दूरी देर से है, बस मतलब केवल 20 किलोमीटर बचा है जयपुर पहुंचना, तो हमको ये फाइंड करना है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स सी। इसका हम कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये उसको जाना है कहाँ से? दिल्ली से जयपुर। क्वेश्चन में क्या बोला कि सुबह 8 बजे वो दिल्ली से चलती है और किस स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। अब 8 बजे चलती है, सपोज हम कहते हैं ये है 1 बज गए। एट 1 PM शी ऑब्जर्व दैट शी इज़ 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर, मतलब बस 20 किलोमीटर बचे फिर वो जयपुर पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, डायग्राम हमने बना लिया है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर होगा डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 8 AM टू 1 PM प्लस ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भाई दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस पूछ रहा है और ये हमको पता है कि जब 1 बजे वो पहुंच गई थी तो वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर बचा था। मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर क्या हुआ? सुबह 8 बजे से लेके सुबह 1 बजे तक जितना डिस्टेंस उसने कवर किया प्लस 20 किलोमीटर और उसने कवर किया, वही होगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे अब एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। स्पीड कितनी दी है क्वेश्चन में? यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्पीड कितनी दी है? x किलोमीटर पर आवर। अब हमको एक रिलेशन पता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये एक रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन से हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अब डिस्टेंस क्या हुआ फाइनल? दिल्ली से लेके 1 PM तक के बीच का डिस्टेंस और 1 PM से लेके जयपुर तक के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो हमको पता है 20 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है कि कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि स्पीड कितना है, स्पीड कितनी है। अब रिलेशन क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन हमको स्पीड पता है और हमको टाइम पता है। टाइम हमको कैसे पता है? भाई सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक कितने गैप है? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे का गैप है। दैट मीन्स टाइम फ्रॉम 8 टू 1 PM, ये 8 AM ओके, फ्रॉम 8 टू 1 PM कितना हो जाएगा? 5 आवर्स। देयरफॉर फाइनल, अब हमको आंसर कैसे पता चलेगा? मतलब आंसर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ओके।
ये डिस्टेंस तो पता है 20, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन हमको स्पीड और टाइम पता है जो कि डिस्टेंस के इक्वल होते हैं। तो स्टेटमेंट बनेगा स्पीड दैट इज x इंटू टाइम दैट इज 5 प्लस 20 किलोमीटर्स, दैट मीन्स 5x प्लस 20 किलोमीटर, 5x प्लस 20 किलोमीटर, ये होगा हमारा फाइनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। With this, we come to an end of this exercise. Thank you.